on the behalf of the Unique Academy. Today we are meeting here for the purpose of understanding what is optional subject in your UPSC's preparation. What are the different optional subjects available? And then myself will be talking about sociology as an optional subject. Right. Now you can look at the board in front of you. You can see that the name of this webinar cum seminar has been written as a sociology, a topper's choice, isn't it? What attractive now लिखा है, सोच के लिखा है, right? Now why this name has been given to this particular subject? We have to discuss it, right? So for keeping our discussion very targeted, we are going to refer to the presentation through which we will go through the series of steps of our discussion. And through that, we will try to understand why sociology is an optional subject. It shall be the choice you shall make, right? So let's start with the discussion and we will follow a standard operating procedure here. I will take some time to discuss the different issues about this particular topic, the sociology as an optional subject. You may come across certain doubts in the discussion process. If you find out that this doubt has to be clarified right now, then you can simply raise a hand and ask for the question. Those who have joined online can also use a chat box for the same. But many of the time it will happen that whatever doubts that are coming in your mind will be discussed in the subsequent discussions in the further PPTs. So I will suggest you that be patient, listen to the discussion, and at the end of the discussion, we will have a detailed question answer session. I will be sitting here and trying to solve all the questions that will be arising in your mind, right? So let's begin with the topic. So when we are looking at this particular dimension, we are saying that sociology as an optional subject is a part of our mains syllabus, right? Now you people might be quite aware about the scheme of the examination. There are 3 stages in this examination: preliminary, mains, and interview. So main examination. In the main examination, now we are talking about is that there are 4 different types of paper you have to attend. You all must be knowing about there are general studies paper, GS paper बोला जाता है. There are 4, right? GS 1, 2, 3, 4, 4 paper है आपको. Then there is another kind of a paper which will be essay paper, right? They will be giving you an essay topic. You have to write in about 1,000 words for the same. 2 essay लिखने पड़ेंगे. Then there will be third type of questions, the question paper in front of you, which will be language paper. Now, there will be 2 languages you have to write a paper for. One is a compulsory language, which is English for everybody. And there will be a choice language. Now, most of the people will go for their vernacular medium language like Marathi, or some people may go for Hindi or other languages of their choice. It is exceptional for some northeastern state students that they can not opt for this particular language. उनको एक ही language का paper देना. But I don't think कि यहाँ पे जो लोग बैठे, they have to go for the second language, most of you. Now the last paper which we are interested in our today's discussion is about optional subject. यहाँ पे लिखा है देखो 4th point mains examination में आपके सामने लिखा है. Now what is this mains का optional subject? नाम ही उसका दिया है optional. So it doesn't mean that it is optional that you have to choose. It is only optional in the sense that you have to choose one subject out of the available list. ऐसा नहीं कि optional मतलब देना ही नहीं देना. ये वाला option available नहीं है. So you have to give this paper. But point is that you can choose any subject of your choice. Now this creates a dilemma, right? क्योंकि बाकी 3 जो चीजें है that is same for everybody. तो वहाँ पे टेंशन नहीं है. GS करना है सभी को, ऐसे भी सभी को लिखना है, लैंग्वेज पेपर भी सभी को लिखना है. अब ये जब ऑप्शनल सब्जेक्ट, वैकल्पिक विषय in Marathi, Hindi, पर्यायी subject, that we have to choose. So it creates a lot of dilemmas into minds of students, aspirants.
because plethora of subjects are available. Now what to choose, right? Now a lot of things comes in front of our mind when we have to choose the subject. First thing that comes to our mind is that I have done graduation in some of the subject, right? Some people might be sitting here who might have done their engineering or BSc graduation. Some might have done commerce graduation. Some might be arts graduate student. तो जो इंजीनियर है उसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन है या कॉमर्स का बंदा है उसका कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी अच्छा है बिकॉज ही हैज डन द ग्रेजुएशन. तो नाउ शैल दैट पर्सन गो फॉर दैट सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, राइट? तो पहला ख्याल तो यही आएगा दिमाग में कि मैंने सपोज मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है तो क्या मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लूं ऑप्शनल. फिर याद आता है कि ग्रेजुएशन में क्या क्या किया था लाइफ, और फिर ये आगे सवाल आता है कि अगर ये मैंने ग्रेजुएशन में नहीं किया तो यूपीएससी में क्या ही कर लूं, राइट? एंड देन दैट इज वेयर आवर गाड़ी गोज टू अनदर मोड, राइट? तो कहा जाती है गाड़ी, गाड़ी गोज टू द अनदर मोड कि टॉपर्स कोणता सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, राइट? नाउ बिकॉज व्हेनेवर यू स्टार्ट फॉर योर प्रिपरेशन लास्ट ईयर का कोई रिजल्ट आया ही होता है. And now because internet is available for you all people, जो धन धनाधन मिल रहा है सब लोगों को. So now people search it on different platforms like YouTube and other platforms, and they will find out some toppers who have cleared the examination last year or in previous years. They will be talking about their own subject, their own experiences, their journey, how they have studied this particular subject. And फिर आपके दिमाग में दूसरा जो चीज आता है वो आता है मार्केट में कौन सा चल रहा है, ठीक है? तो मार्केट में फॉग चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो अलग बात है, बट सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है ये आपके दिमाग में आता है. तो ये सब्जेक्ट मैं ले लूं क्या? फिर आपको 2-3 सब्जेक्ट के बारे में पता चलता है कि ये चल रहा है मार्केट में, राइट? फिर ये ले लूं, लेकिन मेरा इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं ये भी तो देखना पड़ेगा, isn't it? Now there are different ways through which you go to select a particular subject as an optional subject. तो हम लोगों को पहले समझना है ये डायलेमा कैसे क्लियर करें, राइट? I am not going to tell you which subject you shall choose. That choice you have to make, right? So first of all, what I am going to do, I am going to tell you how you shall come for a conclusion कि ये subject मुझे optional subject के लिए पढ़ना है. I will tell you about the different stages or steps you have to follow to conclude कि ये optional subject I have to choose. And then I will talk about sociology and an optional subject because that is my subject. I will be teaching for it कि भाई इसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा. So we will divide our discussion into 2 phases. First phase will be neutral phase in which I will be talking in general about how you shall be choosing an optional subject. But ये डायलेमा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये थॉट प्रोसेस आपको सबको दिख रहा है, तो आपका दिमाग है, आपके दिमाग में ये 5 चीजों को आपको थॉट करना है. लेकिन ये इतना दिमाग पे टेंशन क्यों लेना है, प्रेशर क्यों देना है? ठीक है, एक तो आज सैटरडे का दिन है, वीकेंड के दिन में बारिश भी शुरू हो गई है, राइट? तो इतने अच्छे मौसम में ये भजी पाव खाने से और चाय पीने का छोड़ के why are you sitting in this classroom or attending it online and trying to think about it? The significance lies here. Look at the marks allocated to optional subject. कितने मार्क्स allocated है भाई इसको? देखो हाईलाइट की. कितने मार्क्स allocated? 500. So out of your scheme of examination, mains subject, main key examination में there will be all the papers which will carry 250 marks. So essay will have a 250 marks, ethics will have 250 marks. जीएस पेपर 1 उसमें 3 आपको सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी. कंबाइनिंगली ऑल टुगेदर दे विल बी कैरिंग 250 मार्क्स. सो सारे सब्जेक्ट maximum marks in general studies or other than optional subject, they are carrying maximum 250 marks. But when we are coming to an optional subject, क्या आइए बोलिए. मी राइट साइड ला बघू आज. अच्छा ओके चलो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया. हाँ. So
We were saying कि optional subject is a subject that has the highest weightage in your examination. Now I am saying examination. पहले मैंने बोला कि मेंस का स्कीम जो है उसमें है. बट अगर आप देखोगे तो प्रीलिम भी आपको 200 मार्क्स है, उसमें भी जीएस में सारा पढ़ना पड़ेगा. सीसेट क्वालिफाइंग उसको भी पढ़ना पड़ेगा, वो 400 मार्क्स हो गए टोटल मिलके. आप इंटरव्यू जाते हो उसमें भी यू हैव 275 मार्क्स. Isn't it? Now what is happening here? When you are talking about this, optional subject carries highest mark, 500 marks. That is the most important aspect of our preparation. And इसीलिए थोड़ा सा वीकेंड के डे पे आके भी हम लोगों को दिमाग का बत्ती जलाना पड़ेगा. Now how we shall be giving a thought about what are the important steps that we have to follow while we are choosing an optional subject for our preparation. And why is that is also an important aspect. We will talk about it later. But look at the 5 parameters that are there. क्या-क्या parameters है भाई देखो. The first step or parameter through this process you have to go through is what is an optional subject. ये पहले आप समझ लो कि optional subject माने मतलब है क्या. What is UPSC expecting from you in the examination when you will be writing an answers of the optional subject, how they will be different from general studies. This will give you an idea how you shall be preparing for optional subject. समझ रहे हो? UPSC will give you an idea from 2 sides. One, they will give you syllabus, another they will give you a question paper of last year's. Looking at them, you have to understand what is the demand of UPSC for this particular part of examination, let's say optional subject. तो ऑप्शनल सब्जेक्ट है क्या, इसके ऊपर बात करेंगे. फिर कौन कौन से अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अवेलेबल है यूपीएससी की तरफ से हम लोगों को, दैट वी विल ट्राई टू शो. एंड देन वी विल कम टू आवर ओन इंडिविजुअलिस्टिक लेवल एंड वी विल सी वी वांट टू चूज एनी वन आउट ऑफ दैम. तो कैसे इसको चूज करें, देन वी विल सी a 3-stage प्रोसेस इन बिटवीन दैट आल्सो. एंड देन वी विल गो टू द सेकंड फेज ऑफ आवर डिस्कशन, सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट कैसा है, एंड एज अ mentor of that subject and as an institution that will be providing you this particular coaching, what will be the role of Unique Academy in your endeavor to study this particular subject, right? So step by step jate hain. So let's look at the first point here. What is an optional subject? Now this will be easy for all of you people to understand if you understand it in comparison with the general studies preparation that you are doing, right? तो आप सब लोगों ने प्रिपरेशन शुरू किया ही होगा, थोड़ा बहुत तो देखा ही होगा, एनसीईआरटी वगैरह देखे होंगे, 2-4 लेक्चर्स अटेंड किए होंगे, थोड़ा बहुत पढ़ाई शुरू किया होगा, राइट? नाउ व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जनरल स्टडीज, यू गॉट टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट इट इज वेरी वास्ट इन सिलेबस. है कि बहुत सारी चीजें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, सोसाइटी, डिजास्टर मैनेजमेंट. ये सुन के डिजास्टर होने लग रहा है, इतना सारा सिलेबस है. उसके बाद में इंटरनल सिक्योरिटी है और क्या क्या है, बहुत सारी चीजें. हिस्ट्री में भी 4-5 पार्ट है, राइट? ज्योग्राफी में 2 पार्ट है, सोसाइटी में बहुत डायमेंशनल इश्यूज है. तो सिलेबस इज वेरी वास्ट, नो डाउट अबाउट इट. बट द डेप्थ ऑफ योर प्रिपरेशन इज एक्सपेक्टेड इज नॉट दैट डीप एज कंपेयर टू योर ऑप्शनल सब्जेक्ट. यहाँ पे फर्क समझ लेना पड़ेगा. तो ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ही होगा आपका, फॉर डिस्कशन पर्पस बोलते हैं सोशियोलॉजी. You have to study only one subject, sociology. But the depth it is expected that you shall be studying is little bit more. लेकिन ये more कितना है, ये भी तो पता होना चाहिए. कितना more यूपीएससी का दिल कितना more मांग रहा है, तो ये भी यूपीएससी ने खुद बताया. In their notification, UPSC gives a notification every year when they are calling for application for the preliminary examination. तो यूपीएससी का notification आ जाता है, right? तो आपका those who are preparing for 2024 का attempt या 2025 का attempt, आपका तो next year आएगा या next to next year आएगा. But you can refer to last year's notification 2023 में February month में notification was there to call an application for preliminary examination. तो वही notification हम भी refer करेंगे as a reference purpose, and we will find out that what they are expecting from the aspirants of UPSC with respect to optional subject. To look at the second and third point, what they are writing, and then we will come to the first point, which is more important. But let's understand second and third first. They are saying
The scope of the syllabus of an optional subject is broadly of honors degree, which is level higher than bachelor's degree and lower than master's degree. मतलब to say it, ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स के बीच का लेवल आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट का पढ़ना पड़ेगा. Now compare it to GS back. When you are reading or preparing for general studies, what are the standard books you are referring to? क्या रेफर करते हो आप? अरे क्या रेफर करते हो कुछ? आप तो बताओ. एनसीईआरटीज कौन से स्टैंडर्ड्स के करते हो? 6 to 12. तो मैक्सिमम कौन सा है? 12th स्टैंडर्ड. तो आप समझ गए डिफरेंस क्या हो गया. तो when you are preparing for general studies, maximum difficulty level that they can go for with respect to the reference material that you are reading will be about 12th standard का difficulty level. But when it is coming to the scope of optional subject, उन्होंने specifically mention किया है कि भाई honors level का पूछेंगे, very close to masters level का आपका difficulty होगा. If you are going for humanities, if you are going for technical sub areas like engineering or medical science or law, graduation level का पूछेंगे. तो मतलब graduation level का तो आपको पक्का पढ़ाई करना पड़ेगा. Understood? This is the first aspect. तो पढ़ाई करने का तरीका बदलना पड़ेगा. When you are starting with your optional subject, let's say sociology का आपने preparation शुरू किया, तो reading the NCERTs of sociology and Indian society will be just the beginning. It will be kind of a thing कि आप क्या कर रहे हैं? We are just trying to freshen up yourself for the more detailed study of sociology. वो तो background तैयार करेगा आपका on which you need to build up the different areas in that particular subject. It is same. It is very similar for all the subjects available for you in your optional ka choice, right? But now come to the first point mentioned on the screen. Now this is very important, and I have also highlighted important part in a yellow color. Highlight किया है तो देखो क्या लिखा है वहां पे. The main examination is intended to assess the overall intellectual trait and depth of understanding of candidate rather than merely the range of information and memory. फर्क समझ गए? मतलब क्या है? सिंपल भाषा में रट्टा वाला नहीं चलेगा, समझदार इंसान चलेगा. फर्क समझ रहे? So it is not the case that you will be given 2 books कि ये books आपको पढ़नी है और जो भी एग्जाम में आएगा इसमें से लिख के आना है. Not allowed. मतलब allowed नहीं, मतलब आप लिख के आ जाओ, चॉइस है आपका, बट उसको मार्क्स नहीं है. You will be having average marks in your answers. Average से तो काम नहीं चलेगा. You need to have above average marks, then and then only you will be into the top ranks. So select हो जाओगे इंटरव्यू के लिए. Understanding it? So it is a competitive examination. We have to score more than everybody else. Then and then only it will be easy for us to get into top ranks. And इसीलिए when UPSC is expecting the depth of understanding from the candidate, इसका मतलब है we need to prepare the subject into little bit depth. अरे समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है? Along with your NCERT, which will create your foundation, you need to refer to certain good books, which we will be suggesting. Don't worry. Most of them will be graduation and post-graduation material of some reputed universities. Some of them will be reference book of some authors, maybe Indian authors or foreign authors. But we will be going very selectively. हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे. We are not going to हम लोग यहाँ पे thesis नहीं लिखने आए, हम लोग यहाँ पे PhD करने नहीं आए. So that will not be our approach. Our approach will be very much exam oriented. And that's why मैं हमेशा मेरे students को बोलता हूँ, you have to be विद्यार्थी. I accept it. You have to be a student, विद्यार्थी. But you have to be a परीक्षार्थी more. तो फर्क क्या है दोनों चीज में? तो विद्यार्थी जो है, he is there to earn knowledge. विद्या अर्जन जो करने आया है वो विद्यार्थी होता है. He is there for knowledge. He is there seeking a knowledge. तो knowledge तो seek करना पड़ेगा, उसके सिवाय तो आगे जा ही नहीं सकते. But our more focus shall be toward an examination. So we shall be more pariksharthi. So we are seeking what examination is asking us. We are more exam oriented, and that will be our preparation style also. That will be our teaching styles. So इसमें क्या फायदा हो जाएगा? We will be providing you certain material for preparation. तो lecture यहाँ पे हो जाएंगे. We'll be referring to the syllabus of UPSC.
point by point we will be going through the syllabus. Each topic will be discussed in detailed manner here. We will be providing you some lecture material जो class में हम लोग पढ़ाते उस time पे. Now those who have studied Indian society with me, कितने लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे? GS में Indian society. Now you might be knowing about how do I deal in the class. So we extensively use whiteboard. I also keep on writing on the board continuously. So you shall be expected to use it. We will be also referring to PPTs for certain topic. We'll keep it fluid. Whenever required, we will go for whiteboard. Whenever required, we will go for PPTs. Along with that, you will get separate material, which we referred as a printed material or extra class notes. आपको मिलेंगे in digital or physical format. That also you are supposed to read, which will be extension to the discussion we had in the class. Along with that, we will also suggest to certain course material. Very easy वाला material will be suggested to. तो ये सारा पढ़ के इसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा, which will be the demand of the UPSC. But we will make this procedure very structured, easy and doable. क्योंकि सारा प्रिपरेशन कोई भी कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. But to make it a timely endeavor is a very important aspect. So preparing an optional subject will take a lot of time if your preparation is not planned, structured, and according to time orientation. So that will be our target here. Our target will be completing the optional syllabus before you start your prelim preparation for 2024 pattern. So generally students start preparing for their prelims by the month of January, they will start. We will try to complete the syllabus before that so that you will have a confidence that कि मेरा मेंस का ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड जीएस का ऑप्शनल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन अच्छा हो चुका है, ऑलरेडी मेरे क्लासेस हो चुके हैं, मटेरियल पढ़ा भी है, एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीलिम्स. तो जब मैं प्रीलिम क्लियर होगा, आई कैन बी अ गुड competitor to other candidates in the upcoming mains examination. So this is what I will try in the classroom to do. Understood? And that's why see, सिर्फ रट्टा मारने से नहीं चलेगा, समझदारी से काम लेना पड़ेगा. तो पढ़ाई करते हुए भी we will be going into a discussion about that topic. This is a topic that is mentioned in the syllabus. तो भाई इसके बारे में ये किताबों में बोला गया है. But how it is applicable in the contemporary times? Now, this is a very important dimension of sociology. Those who have studied Indian society, as I mentioned earlier, it is simply a small part of sociology as an optional subject given in your general studies, right? तो हम लोगों को वहां पे भी दिखता है कि how whatever we study has to be applicable to society ना, नहीं तो पढ़ने का क्या फायदा है? अरे आप समझ रहे हो? Because when you are going to be a future government officer, ये knowledge भी तो काम आएगा in your decision making process, isn't it? Your understanding of society becomes an important part, and इसीलिए हम लोग वो पढ़ेंगे यहाँ पे society में इसको apply करके देखेंगे. Lot of contemporary issues we will discuss in the class कि इसके बारे में देखो ये कैसे हो रहा है. Now why this is important from the two point of view? First, that it will help you to understand that particular concept in a very nice manner. So you'll remember it for a longer period of time, easy for you to revise and write in exams. And second point, it will give you a content to write an examination. तो examination में आपको expected है कि आप contemporary context में answer को mold करके बताओ exams. The examiner becomes very happy when he sees that a candidate not only has understood basic theories and principles that are discussed by scholars few hundred years ago, that candidate can put it into application also. So this is a better person to become a government officer क्योंकि सिर्फ theory नहीं पढ़ी है तो practical knowledge भी apply कर सकते हैं. तो इनको marks अच्छे दे दो, शायद ये अच्छे government officer बन सकते हैं. That will be the orientation of an examiner. तो हम लोगों को examiner के दिमाग से सोचना है, right? So there is a saying in English ना, let's get into the shoes of others to understand what others are feeling. So अदर यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट अदर कौन है? एग्जामिनर. वो क्या सोचते हैं? क्वेश्चन पेपर सेटर क्या सोचते हैं? जो इवैल्यूएशन करने वाले हैं एग्जामिनर है, वो क्या सोचते हैं? उस अगर दिमाग से हम लोग जाएंगे तो इट विल बी इजी. तो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द प्रोसीजर. आप समझ रहे हो? तो सोशियोलॉजी की लेक्चर तो शुरू हो जाएगी 17th of July को, बट वी स्टार्टेड अवर प्रिपरेशन बाय अंडरस्टैंडिंग इट
कि पहले हम लोग यूपीएससी के शूज में जाएंगे और देखेंगे उनको क्या चाहिए। एंड जनरली यूपीएससी हैव दिस हैबिट ऑफ गिविंग यू अ हिंट कि वो क्या करने वाले। तो आपको एक एग्जांपल दे देता हूं उसके लिए। यू ऑल मस्ट हैव सीन 2023 का यूपीएससी का प्रीलिम का क्वेश्चन पेपर देखा क्या? देखा क्या था, मतलब क्या था, दैट वाज द एक्सप्रेशन। बट सी व्हाई पीपल फील्ड दैट वे कि अरे बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, दैट वाज द डिस्कशन पीपल वर हैविंग बिकॉज यूपीएससी हैज आस्क्ड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिसमें ऑप्शन पेयर फॉर्मेट में दिए। तो उन्होंने वैसे प्रैक्टिस नहीं किया था, उनको तो एलिमिनेशन टेक्निक पे बहुत भरोसा था। तो यूपीएससी ने बोला इधर आओ, ये तो मैंने दिया नहीं, अब क्या करो। बट उन्होंने हिंट दिया था आपको 2022 में। क्या दिया था हिंट? दे गिवन अराउंड 7, 8, 9 क्वेश्चंस ऑफ दिस पेयर टाइप इन योर एग्जामिनेशन ऑफ प्रीलिम्स। और उन्होंने हिंट दिया था कि देखो ये वाला नया चीज हम लोग लेके आए हुए। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर इन दैट वे, बट नोबडी प्रिपेयर्ड इन दैट वे। सब लोगों को लगा ये तो मैं 8 क्वेश्चन छोड़ के 92 में से अटेम्प्ट कर लूंगा। बट नहीं, उन्होंने बोला कि आप करो, हम लोग उसमें से ज्यादा क्वेश्चन देते थे आपको, अराउंड 40% क्वेश्चन दे आस्क ऑन दैट टाइप। तो क्या हो गया, जो हाफ नॉलेज पे आप आंसर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, आंसर की तरफ आ सकते थे, यूपीएससी ऐसे नो दे वांट अ परफेक्शन। तो जितने भी मार्क्स लेके आओगे, कट ऑफ कुड बी 75 एंड 115, जो भी कट ऑफ लगेगा, 115 इज द हाईएस्ट कट ऑफ यूपीएससी हैज हैड वंस इन देयर हिस्ट्री। इस साल की चर्चा चल रही है जो भी है, तो वी विल से 75 है या 115 है। पॉइंट इज दैट कि somebody is scoring that, we have to be that somebody। अरे आप समझ रहे हो? We need not to go into that discussion कि मैं यूपीएससी में रिकॉर्ड बनाऊंगा। अच्छी बात है, अच्छा एम्बिशन है कि मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा, अच्छी बात है। बट पहले क्या करते, जिसमें है उसमें हम लोग सिलेक्ट होने का पहला प्रयास रखेंगे। तो वी विल हैव वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच, वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच लुकिंग टुवर्ड एग्जामिनेशन की सिलेबस क्या है। तो ये सिलेबस के ऊपर क्वेश्चन कितने आते हैं, इसको वेटेज कितना है, उतना ही टाइम लेक्चर में उसको एलोकेट करेंगे, उतना ही टाइम मैं आपको उसको घर पे या लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने के लिए एलोकेट करके करने के लिए बोलूंगा। एंड वी विल गो इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर बिकॉज यूपीएससी इज डिमांडिंग दैट फ्रॉम आवर साइड। ओके, सो नाउ वी अंडरस्टूड द फर्स्ट पॉइंट, लेट्स गो टू द सेकंड पॉइंट। तो इन्होंने बोला है कि भाई ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में हम लोगों को ये चाहिए, और ये है ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके सामने, राइट? तो इसमें से चूज कर लो। तो उन्होंने तो लगा दिया है दुकान, आपका चॉइस है चूज करने का ना। इसको हम लोगों ने हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ एरियाज में डिवाइड किया। देखो क्या क्या, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट है। अफसोस कंप्यूटर का नहीं है सब्जेक्ट, लॉट ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी इंजीनियर्स आर देयर, बट वो नहीं है, क्या करें। 3 इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है। मेडिकल साइंस का है, दोज हु आर फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड कैन गो फॉर इट। साइंस साइंटिफिक नेचर जिसका होता है, इंक्लूडिंग फिजिक्स, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर सब्जेक्ट्स दैट आर आल्सो मेंशन्ड। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ये भी आजकल सब्जेक्ट आता है, सम पीपल आर चूजिंग इट। बट नाउ कम टू द फर्स्ट दैट इज मेंशन्ड हियर। क्या देखो मेंशन किया है यहाँ पे, ये वाला फर्स्ट वाला दिख रहा है ना, राइट? क्या लिखा है उसमें? सोशल साइंसेस, और इसको आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। द सब्जेक्ट विच आर रिलेटेड टू ह्यूमंस एंड सोसाइटी आर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट और सोशल साइंसेस। अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी इन अ साइंटिफिक वे जो करेंगे उसको सोशल साइंसेस बोला जाता है। तो उसकी भी लिस्ट है आपके सामने में, सारे बस आपके पहचान वाले सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें सारे जीएस के रिलेटेड सब्जेक्ट आपको दिखेंगे। दिख रहे? देखो ना, इसमें अगर आप देखोगे तो इन टोटलिटी जितने ऑप्शनल सब्जेक्ट अवेलेबल है उसको अगर हम लोगों ने 5 कैटेगरी में कैटेगराइज किया, तो सोशल साइंसेस इज द कैटेगरी हैज बीन चोजन बाय almost 80 to 90% of the people who are appearing for the examination. I'm saying category. Understood? Now you have to go and look at the optional subjects available in the detailed manner here. Now ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया प्रोसीजर, है कि नहीं? मतलब ये ऐसे लग रहा है कि हम लोगों को शर्ट लेनी और हम लोग गए मॉल में, अब इतनी सारी शर्ट है उसके सामने पड़ी हुई, कौन सी शर्ट चूज करें? इट्स एन इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट चॉइस।
तो जैसे आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो तो यहाँ पे भी कंफ्यूज होना जायज है. बट नाउ we have to understand that there is a process to choose the subject out of the available options. और वो कौन सा है? This is the 3-stage procedure you have to follow. And this is the most important slide in our first part of discussion. तो first part of discussion क्या है कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से अवेलेबल है, क्या होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, और आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने के लिए कौन सा मेथोडोलॉजी फॉलो करना है. राइट. फर्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन में दिस इज द इंपॉर्टेंट स्लाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो आप देखो, आपको दिखाया, देखो आप ही दिखाया हो, भाग रहे हो, आपका गोल है यूपीएससी क्लियर करना. तो अभी तो आप शुरुआत में हो, राइट, ग्राउंड पे हो, थोड़ी देर में हवा में जाना शुरू हो जाओगे स्टेप बाय स्टेप. तो पहला स्टेप जो है आपका, that you have to find out to choose an optional subject, is to find out what is your interest. आपका इंटरेस्ट किसमें है, राइट. लगता है बहुत इजी क्वेश्चन, बट है बहुत डिफिकल्ट टू सॉल्व. वैसे अगर आपको पूछा जाएगा कि क्या पसंद है, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, राइट. हाँ, तो कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, तो आप बोलते हो कि बचपन में मुझे हिस्ट्री अच्छा लगता था, फिर थोड़े दिनों बाद मुझे मैथ्स अच्छा लगने लगा, फिर जैसे ही मैं 10th 12th के बाद आया, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स आए, मुझे लगा मैथ्स तो मेरे बस का चीज नहीं है, फिर मुझे ज्योग्राफी अच्छा लगने लगा. फिर मैं 11th 12th खत्म हो गया, मैं ग्रेजुएशन में आया, तो इंजीनियरिंग में आया, तो मुझे पता चला कि अरे नहीं, ये सारा तो झूठ है, लिटरेचर लिखना चाहिए. फिर मैं शायर बन गया. देन आई स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री एंड शेर व शायरी लिखने लगा. तो मेरा इंटरेस्ट तो लाइफ में चेंज होते रहा है. So what shall I be choosing? तो एक इंटरेस्ट में नहीं बता सकता. But no, this dilemma you have to solve. Because see, what is your interest? Only you can tell. Nobody else can give you an input here. फिर तो मतलब tinted हो जाएगा प्रोसेस. You have to find out what is your interest. Now, finding out an interest is also it is not a gutsy type of thing कि मैं बोल देता हूँ ये है मेरा इंटरेस्ट, ऐसा नहीं है. And now why this shall not be the case? Because many of the time it happens that people start preparing on their gutsy feeling कि let's see, X is my interest thing. I feel interest into subject X. They start preparing, and sometimes after a year or two or so, many of the time after writing couple of mains, student come to an understanding that मेरा तो इसमें स्कोर ही नहीं आ रहा है. And why is that so? And then they do detail analysis, and then they understand that I am not reading enough and I am not writing enough for this particular subject, and why it is happening. Even if I am attempting a mains, I am a very sincere candidate. I am doing a lot of practice for GS का paper, essay का paper. But when it comes to an optional subject, now I don't feel like doing it. ये वाला जो फीलिंग है, अरे मुझे मन नहीं कर रहा है ये ज्यादा पढ़ाई करने का, that means that you nearly actually never had an interest in that subject. You just went for that subject because of certain other parameters that you done. Maybe a gutsy feeling कि ये ले लेते हैं, मार्केट में चल रहा है. Understood? And that's why you have to go and find out कि सच में ऑप्शनल सब्जेक्ट का इंटरेस्ट आपका कौन से सब्जेक्ट में है. Now ये कैसे फाइंड आउट करें भाई? तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो चीजें हैं जो इसमें आपके पास लिखी गई है. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो लिखा है कि द सब्जेक्ट विच यू फील फैमिलियर विथ मे बी द सब्जेक्ट यू हैव इंटरेस्ट विथ. इंसानों का भी ऐसे ही होता है, जिनके साथ जान पहचान होती है उनमें पहले इंटरेस्ट आ जाता है. Isn't it? तो वैसे ही अनजान इंसान के साथ इंटरेस्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज हम उसको जानते ही नहीं. वैसे ही है सब्जेक्ट के बारे में भी कि इफ यू आर फाइंडिंग दैट सब्जेक्ट फैमिलियर टू यू, you will develop an interest in that subject very easily, or you can understand that I have an interest into that subject. But ये तो और अलग चीज हो गई कि भाई फैमिलियरिटी विद दिस सब्जेक्ट मैटर या सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करें. तो उसके लिए भी एक अच्छा सा प्रोसीजर है. ये प्रोसीजर हम उसको फॉलो करें. क्या प्रोसीजर है देखो. So we will simply try to look at the syllabus
of our syllabus. So we will take a case study of sociology for that particular purpose. We will see this is the syllabus of UPSC sociology optional subject paper 1. Right now, this is a part of the syllabus. So I have put certain areas, especially the headings of the topic there, just to make it easy for you to read through it and कम मटेरियल हो, क्योंकि ज्यादा डालेंगे तो ऐसा होता है, राइट? तो ये थोड़ा पढ़ने में टाइम लगेगा, इससे अच्छा सिंपल वाला कर दिया. तो जस्ट गो थ्रू द सिलेबस और द डेटा दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू. तो क्या क्या लिखा है देखो. So this is paper 1. This is where you will be developing the theoretical aspects of sociology, right? तो क्या आप यहाँ पे जब देखते हो तो can you find out that there is a term called as politics and society. ये चैप्टर का नाम है, यूनिट का नाम, उसके अंदर सब पॉइंट्स है, ये हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे. तो देखो उसमें अगर आप पढ़ोगे तो कुछ पहचान वाला लग रहा है उसमें, राइट? फिर नीचे जाते और कुछ लिखा है यहाँ पे. देखो रिलीजन एंड सोसाइटी लिखा है. इसमें क्या लिखा है देखो, कुछ ऐसे सुनाई दिए हुए वर्ड लग रहे हैं. देखो है, नीचे देखो सिस्टम ऑफ किनशिप. किन मतलब क्या होता है? अरे भावबंदगी, नातेदारी इन अ वेरी सिंपल वर्ड. तो उसमें देखो क्या क्या लिखा है. क्या सुने सुनाए लग रहे हैं ये सब. आगे देखते हैं, सोशल चेंज के बारे में बात करें तो सुना सुनाया लग रहा है कुछ. एजुकेशन एंड चेंज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड चेंज. I think yesterday we had a lecture in GS. Some of the students were here, might be 8th May की बैच का था. इनमें I have given a question about it also. I will put it on the Telegram channel later, so you can go through that question also later. But coming back to the discussion, what do we find out? Now this is a paper 1 of sociology, which is supposed to be the part where theories are there. Now if this is comparatively familiar with you people, then find out this is going to be very very familiar with you. अब ये पढ़ो. Now ये पेपर 2 है सोशियोलॉजी का. पेपर 2 इज इंडियन सोसाइटी एंड सोशियोलॉजी. ना इसमें हम लोग जाएंगे, देखेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं. देखो कुछ सुना सुनाया लग रहा है. देखो ये कुछ सुना सुनाया लग रहा है. कास्ट सिस्टम, ट्राइबल कम्युनिटीज, इंडस्ट्रियल क्लासेस, एग्रेरियन क्लासेस, मिडिल क्लास इन इंडिया, राइट? फिर फिफ्थ पॉइंट देखो किनशिप. कुछ रिपीट हो रहा है क्या यहाँ पे? अरे कॉपी पेस्ट है क्या? गलती से लिखा है क्या? नहीं नहीं, गलती से कुछ नहीं लिखा है. इट इज एक्चुअली देयर. और अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड आउट that this part of the syllabus is exactly as there in your paper 2 also. कौन कौन सा है देखो. सिस्टम ऑफ किनशिप लिखा है, 9th टॉपिक. अगर यहाँ पे हम लोग जाते हैं, यहाँ पे हम लोग जाते हैं तो we will find out that system of kinship is again there. Religion and society दिख रहा है, दिख रहा है. If you go and find out, you'll find out the same thing was there in paper 1. तो वहां की थ्योरी पढ़ी, इंडिया में अप्लाई कर दी. क्या आपको कुछ पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी भी दिख रहा है यहाँ पे? अरे दिख रहा है. तो वैसे ही पेपर 1 में भी था क्या? दिखाऊं वापस? तो देखो यहाँ पे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में है. ये देखो ये, यू कैन क्रॉस चेक इट विद यूपीएससी सिलेबस. आप देखो यहाँ पे सोशल चेंज लिखा हुआ है क्या? लिखा है 10th टॉपिक. यहाँ पे जाते हैं पेपर 2 में, यहाँ पे क्या लिखा है? सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सोशल चेंज. तो क्या किया? बेसिक थ्योरीज पढ़ी पेपर 1 में और उसका इंडियन सोसाइटी में एप्लीकेशन देखा कि भाई क्या चेंजेस हो रहे हैं और चेंजेस की वजह से क्या चैलेंजेस सोसाइटी में आ रहे हैं, which we have also studied in our paper 1, isn't it? वही हम लोग इंडियन सोसाइटी GS 1 में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक लेवल आगे जाके पढ़ेंगे बिकॉज दिस इज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट. क्या कुछ पॉइंट रिपीट भी हुए दिख रहे हैं? देखो यहाँ पे कास्ट कॉन्फ्लिक्ट नाम का पॉइंट लिखा है, दिख रहा है क्या? है ना, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट लेके. क्या यहाँ पे कास्ट नाम का टॉपिक था? देखो वापस हो रहा है.
इथनिक कॉन्फ्लिक्ट का भी टर्म था, तो क्या ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ हम लोग इथनिक कॉन्फ्लिक्ट का भी टॉपिक मर्ज कर सकते हैं? So understood what I'm trying to tell you. So when we are looking at the syllabus of our sociology, both paper 1 and paper 2, we got to understand that many of the topics in our syllabus are similar in paper 1 and paper 2. Even if you look at the thinkers that are there, the thinkers that are mentioned in paper 1, उनका थ्योरी पढ़ के इंडियन सोसाइटी में अप्लाई किया है, ऐसे 3 थिंकर आपको पेपर 2 में पढ़ने, मतलब सेम थ्योरी है, बस आपको इंडियन सोसाइटी में अप्लाई किया. सो इट मेक्स अ जॉब इजी फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सब्जेक्ट. आपका टाइम बचता है. नाउ टाइम इज द मोस्ट क्रूशियल रिसोर्स इन योर प्रिपरेशन, टाइम. क्योंकि अगर आप देखोगे, योर एनर्जी is limited and around very आप बोल सकते हो कि सिमिलर है ऑफ द अदर कैंडिडेट्स, राइट. रिसोर्सेज भी आप लगा रहे हो जिसमें टाइम इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स. तो आप कितना टाइम लगाओगे एंड व्हाट टाइम विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द सब्जेक्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ये दोनों मैटर करेंगे. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर अ डिस्कशन पर्पस कि somebody wants to take, let's say, फिजिक्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट. उसका सिलेबस यहाँ पे देख लिया. वो पूरे सिलेबस में न्यूटन साहब छोड़ के कोई पता ही नहीं है क्या लिखा है, मतलब तो पढ़ी है फिजिक्स, बट जब मैं सिलेबस देखता हूँ तो पूरे सिलेबस में देयर आर 100 पॉइंट्स, आई नो ओनली अबाउट 5 पॉइंट्स. तो फैमिलियरिटी इज वेरी लेस विद द सब्जेक्ट. But when I look at the syllabus of sociology and I find out there are 100 points mentioned in the syllabus, but I can find that out of that 100 points, even I have not studied sociology, not anyone in my graduation. I am from different graduation background. I never even looked at sociology book. मुझे पता ही नहीं क्या subject होता है. But even before that also, when I look at the syllabus, I find out अरे इसमें तो 40-50 चीजें ऐसी जो मुझे already पता है. 40-50 क्यों, ज्यादा वाली चीजें हैं जो मुझे ऑलरेडी पता है. तो इसका मतलब क्या है, आपकी पहले से दोस्ती है, बस आप मिले नहीं. समझ रहे हो? तो जब मिल जाओगे दोस्ती बन जाएगी. अंडरस्टूड? बट दोस्ती बनाने के लिए यू हैव टू गिव अ टाइम टू दैट सब्जेक्ट. देन एंड देन ओनली दिस फैमिलियरिटी विद द सब्जेक्ट विल कन्वर्ट इनटू द स्ट्रेंथ दैट यू विल डेवलप ओवर द ऑप्शनल सब्जेक्ट. और यही तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जीएस तो सारे लोगों को सेम है. इट इज देयर सेम फॉर एवरीबॉडी, इजंट इट? बट ऑप्शनल सब्जेक्ट लोगों का अलग अलग होगा. Now, if you developed better knowledge, strength, command over your optional subject, there is a higher probability that you can score better in your optional subject, and that is where you will have a lead as compared to other students. Now, मैं हमेशा आपको यही बात क्लास में भी बताऊंगा कि this is a competitive examination. You have to be better than others candidate. That is the mantra of getting selection. तो हम लोगों को ये नहीं देखना कि मैं कितना पढ़ रहा हूं, राइट. हम लोगों को ये नहीं देखना है कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, कट ऑफ कितना है. वो तो आप कभी बात ही मत करो. व्हाट दैट इज द लोएस्ट बेंचमार्क एवरीबॉडी इज कीपिंग. ये बेंचमार्क कभी नहीं होना चाहिए कि कट ऑफ कितना है. ये हमेशा बेंचमार्क होना चाहिए कि टॉपर कितने मार्क का आया. इफ सोशियोलॉजी इज हैविंग टॉपर ऑफ 315 मार्क्स इन 2022, कैन आई गेट दैट मार्क? How shall I be getting that mark? If somebody can get it, I can also get it, ना. किसी को तो मिला है तो मुझे भी मिल ही सकता है ना. तो उन्होंने क्या किया था 315 मार्क्स सोशियोलॉजी में मिलाने के लिए. तो I shall be trying to do that and I shall be aiming यार 315, 305, 300 मार्क तक मुझे लाने चाहिए. That shall be my strategy. और ये स्ट्रैटेजी अगर ढूंढनी पड़ेगी तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे सब्जेक्ट के बारे में फैमिलियरिटी होनी चाहिए. तो जब आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग दैट सब्जेक्ट, मुझे पढ़ाई करने में डिफिकल्टी नहीं आएगी. सो इट विल नॉट बी द केस दैट आई एम अननोन टू दिस पर्टिकुलर एरिया टेरिटरी. तो पता है उस एरिया में जाके हम लोग इजीली काम कर सकते. समझ रहे हो, राइट? सो गोइंग बैक टू द डिस्कशन, तो पहले जो स्टेप है वो हम लोगों ने बात कर लिया कि मेरा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में, ये मुझे ढूंढना पड़ेगा.
बट नाउ दैट इज वेयर एक्चुअली द डायलेमा बिकम्स मोर ग्रीवर कि मुझे पता नहीं चल रहा है मेरा इंटरेस्ट इसमें, ये 2-3 सब्जेक्ट मुझे लग रहा है, लेकिन इसमें से मेरा सच इसके साथ इंटरेस्ट है, ये फाइंड आउट करने के लिए फैमिलियरिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर आपको देखना पड़ेगा। नाउ ये और एक चीज की तरफ से आप देख सकते हो, कौन सा, जो मैंने पहले भी आपको बोला था, यूपीएससी आपको 2 चीजें देगा, एक आपको देगा वो सिलेबस और दूसरी चीज आपको देगा वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी देख लेते हैं। देखो ये तो मैंने इमेज ही डाल दिया यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर का, मैंने नहीं लिखे ये क्वेश्चन, यूपीएससी के क्वेश्चन है। आई थिंक 2022 यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन पेपर का एक स्नैपशॉट आपको यहाँ पे डाल के दिखाएं। प्लीज रीड थ्रू द क्वेश्चंस, टेक योर टाइम। ठीक, सारे पढ़ना, 6 क्वेश्चन है। ठीक है, हो गया पढ़ के। मैं अभी सिंपल इस बारे में साथ बस सोचे। Now when you read through these questions, now have you studied sociology? पढ़ा है सोशियोलॉजी अभी? नहीं पढ़ा। बट इन क्वेश्चन को देखने के बाद डू यू हैव अ फीलिंग दैट आई कैन राइट एटलीस्ट couple of points about the question that are asked there? ऐसा फीलिंग आ रहा है? इसके बारे में 2 पॉइंट तो लिख ही सकते हैं, 3 पॉइंट तो लिख ही सकते हैं। हाँ भाई मुझे पता नहीं है योगेंद्र सिंह साहब कौन है, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ इंडिया में मॉडर्नाइजेशन हुआ है, इसी बात तो चलती है भाई। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे कि पैट्रियार्की जो सिस्टम है, तो आई कैन से दैट कि आई नो लिटिल बिट अबाउट पैट्रियार्की क्या होता है, अंडरस्टूड। तो अनटचेबिलिटी के भी बारे में मैंने सुना है समवेयर इन माय प्रिपरेशन। nationalism, Indian nationalism, I read history in my GS, so I just need to look at the social background of it। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ भाई इन द वेरी बिगिनिंग 1857 का रिवोल्ट हुआ, उसमें हिंदू मुस्लिम वेर यूनाइटेड बट दे फॉट यूजिंग आर्म्स एंड एम्युनिशन। उसके बाद में हम लोग को दिखता है कि पॉलिटिकल अपराइजिंग हुआ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिशमेंट है, फिर स्लोली दे हैव इवॉल्व्ड स्ट्रेटेजी। तो उसमें देयर आर सर्टेन टाइम्स व्हेन रिवोल्ट्स हैज हैपेंड where sannyasis are revolting, tribals are revolting. There are certain moments in which women participation is increasing over the period of time. तो पहले सिर्फ पिकेटिंग करते थे, बाद में एक्टिव पार्टिसिपेशन ले रहे। तो सरोजिनी नायडू इज एन एग्जांपल ऑफ दैट, शी वाज अ लीडर ऑफ नेशनल मूवमेंट। तो ये तो मुझे हिस्ट्री में भी पता है, तो इसको ही मैं सोशियोलॉजी में लिख सकता हूँ क्या? आई एम ट्राइंग टू जज इट। नाउ लैंड रिफॉर्म्स एंड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन, तो हाँ इसके बारे में भी मैंने पढ़ा है। या नीचे जो दिला है challenges during the village studies in India, तो ये टेक्निकल क्वेश्चन है, बट आई कैन सी that village studies become an important part of understanding Indian society because Indian society is largely rural society, ज्यादा तो rural ही society है। तो इसका स्टडी किसी ने किया होगा क्या सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में? तो उसके बारे में पूछा। So when I look at these questions, these are UPSC 2022 क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। तो these are around 100 मार्क्स आउट ऑफ 250 मार्क्स। तो ये देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि इवन विदाउट रीडिंग द सब्जेक्ट, विदाउट नोइंग अबाउट व्हाट इज देयर इन द सब्जेक्ट, आई कैन अंडरस्टैंड एटलीस्ट व्हाट आर द क्वेश्चंस, तो इट विल बिकम इजी फॉर मी टू प्रिपेयर फॉर द सब्जेक्ट if I choose this particular subject। अगर यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पढ़ा डिस्कस द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो मैंने सुना होगा कि हाँ भाई किसने लिखा था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बट क्या लिखा था पता नहीं। देन इफ यू नो दिस कि आज ये पता ही नहीं है, तो ये पढ़ना डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर मुझे पता है कि इसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है,
तो हाँ 2 पॉइंट को मैं 5 पॉइंट में 5 पॉइंट को मैं 10 पॉइंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ इफ आई विल बी रीडिंग द राइट सोर्सेस, इफ आई विल बी प्रिपेयरिंग थ्रू द राइट डायरेक्शन प्रोवाइडेड बाय मेरे मेंटर्स। अरे समझ रहे हो? तो दैट इज आर्गुमेंट दैट वी आर ट्राइंग टू डेवलप हियर। Now coming back to the same slide that we are discussing, interest in the subject matter कैसे आप डिफाइन करोगे? तो familiarity with the subject matter, subject matter माने सिलेबस, बाकी कुछ नहीं है। तो सिलेबस डिफाइन करता है कि आप सब्जेक्ट में क्या पढ़ोगे, उसको हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट मैटर। ये सब्जेक्ट मैटर के साथ सिमिलैरिटी, फेमिलियरिटी कितना है वो मैंने देखा सिलेबस और क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके। अंडरस्टूड? नाउ वी हैव टू गो टू द सेकंड एंड थर्ड स्टेज, availability of resources. Now ये भी हो जाता है कि suppose you have chose a subject, let's say zoology choose किया आपने because you have done your graduation, maybe masters in zoology. So naturally it is a thing that you will be think to have a let's say inclination toward that subject. तो आपने choose कर लिया, but जब आप लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी, then you got to understand that अरे यार ये तो it is very different than university examination, because I have done my graduation or post graduation from any particular university, so I thought that I can do it, but when I started preparing it, जो university के resources है books से, these are not sufficient if I look at the questions that UPSC is asking, and if I try to search for the sources, I am not getting anything. I am getting only some list of the बुक्स ऑन द इंटरनेट, ये पढ़ा वो पढ़ा, और बुक्स लिस्ट में उन्होंने बुक दी है 97। इफ आई स्टार्ट रीडिंग दिस 97 रेफरेंस बुक, मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर यूपीएससी कब पास करूंगा? इट विल बिकम अ 5 years प्लान, है नहीं? यूपीएससी पंचवार्षिक योजना होंगे, so that is not an objective. I need to do it in a timely manner, and that's why very important. So पहले मैंने structured manner में कैसे करना है वो बताया। Now timely करना भी important. So you can choose any optional subject. There is no doubt about it. Even if you are a, let's say, a student of any background, you can choose physics as an optional subject. कोई बात नहीं. You can choose a literature as an option. Choose English literature. English तो आता है ना सबको. Then choose English as a literature subject. But believe me, to prepare English literature subject, if you do not have a liking and if you are not develop your background, तो आपको क्या लगेगा? 2-3 साल लगेंगे उसमें। शायद कभी शेक्सपियर पढ़ा ही नहीं था, शेक्सपियर का सिर्फ एक कोट पढ़ा है, वो भी गूगल पे होता, वो सफिशिएंट नहीं है ना बाबा, समझ रहे हो? तो द टाइम दैट विल रिक्वायर फॉर यू टू बिल्ड अप योर कैपेसिटी फॉर दैट सब्जेक्ट विल बी अ लॉन्गर टाइम. You have to choose what you want to do, but I think those who are sitting here are planning for 2024 or maximum 2025. वो लोग एक टाइम सामने रख के आए कि भाई मेरे को 6 महीने में ऑप्शनल प्रिपेयर करना है, और I have 1 year to prepare for. So I cannot give 5 years to prepare for this subject, and that's why availability of resources shall be very much to the need. Availability of personal guidance will also be the corollary of the same. आपके पास मटेरियल है, चलो वो 97 बुक्स वाला लिस्ट तो आपको मिल गया, किताबें भी खरीद के लेके आया, राइट? तो 2 टेम्पो लगे थे, घर वाले एकदम लगे कि मेरा बेटा तो पंडित बनेगा। Then you started preparing for it, पूरा रीडिंग वगैरह कर लिया, मस्त नोट्स वर्ड बना लिए, बट वो नोट्स अकॉर्डिंग टू यूपीएससी रिक्वायरमेंट है क्या? जो आप आंसर लिख रहे हो, इज इट रिलेटेड टू यूपीएससी रिक्वायरमेंट? उसको इवेल्युएट कोई करके दे रहा है क्या? कोई फीडबैक आपको दे रहा है क्या? कोई आपको जर्नी में थ्रू आउट मेंटरिंग कर रहा है कि कैसे पढ़ाई चल रहा है, ये करो आप, वो करो, ये करना है? ये जो पर्सनल गाइडेंस होता है, दैट विल बी आल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जर्नी. तो एनीबडी कैन डू इट एन इंडिविजुअलिस्टिक वे. तो आप एकलव्य भी बन ही सकते हो. तो द्रोणाचार्य की मूर्ति, उनको भी तो मेंटर लगे थे ना, फिजिकली नहीं, बट उन्होंने सोचा दिमाग में कि ये मेरे मेंटर है. बट सी, एकलव्य से तो बेटर बाकी लोग ट्रेन हुए, बिकॉज दे हैड अ एक्चुअल मेंटर इन द फॉर्म ऑफ द्रोणाचार्य. स्टोरी तो सुना होगा ना आप सब लोगों ने. तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्टोरी ना. दे हैड अ मेंटर, they had a personal guidance. That's why it becomes easy for them to do what they are doing, because the personal guidance, the mentorship will always try to help you कि आप कहाँ पे गलत जा सकते हो, ये उनको पता होता है. जहाँ पे आप किसी गलती में फंसोगे, वहां से बाहर कैसे निकालना है, they will always have some way around. Whenever you are putting an extra, trying to put an extra effort, in which direction you shall be putting it, that is where the personal guidance will help.
अरे आप समझ रहे हो? तो दिस इज द सेकंड थिंग. नाउ यू हैव टू गो एंड लुक एट दिस. नाउ सोशियोलॉजी का अपना सिंपल, गिन चुन के 4 बुक पढ़नी है. उसमें तो 2 तो अपनी है, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा कैसे पढ़नी है. उसके साथ साथ कौन सा मटेरियल पढ़ना है इसके बारे में बाद में हम एक बार डिटेल में बात करेंगे, और कुछ एग्जांपल्स में आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे कैसे करना है. But along with that, if you want to go and try to understand it early, I will suggest that there is a Telegram channel called as SHIVAJI KALE Sociology. On that Telegram channel, I have already uploaded UPSC's previous year's question papers, certain book list that you need to refer for, right? तो थोड़ा पीछे I will do it, I will upload it again today so that आपको immediately वो मिल जाए. So I will upload that book list that you shall be referring to. उस बुक लिस्ट में अगर आप देखोगे तो सेवरल बुक्स आर मेंशन्ड, बट विल बी नॉट ऑल आर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू रीड. उसमें भी डिवाइड किया है यू व्हाट यू शैल बी रीडिंग एंड व्हाट आर द एक्स्ट्रा रिसोर्स मटेरियल. तो अगर आप 3 बुक पढ़ोगे उसमें एक इग्नू का मटेरियल होगा, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू. अपने क्लास नोट्स के साथ अगर आप इग्नू का सोर्स मटेरियल पढ़ोगे, इग्नू इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये इनका मटेरियल बहुत अच्छा होता है. ये मटेरियल अगर हम लोग पढ़ेंगे विच विल बी वेरी इजी, अगर आप उसके थ्रू जाओगे तो वेरी सिमिलर टू एनसीईआरटी, राइट? वही लोग जो एनसीईआरटी लिखते हैं उसमें से ही कुछ लोग आपको इग्नू के भी एक्सपर्ट कमिटी में दिखेंगे, वही लोग होते हैं एक्सपर्ट लोग जो ये बुक्स भी लिखते हैं. तो वो मटेरियल हम लोग फॉलो कर सकते हैं. देयर आर फ्यू रेफरेंस बुक, उसको भी हम लोग फॉलो करेंगे. तो आई विल सिंपली शेयर दैट बुक लिस्ट विथ यू ऑन द टेलीग्राम चैनल. डू गो थ्रू इट, बट एज आई हैव मेंशन्ड यू विल फाइंड आउट सेवरल बुक्स देयर. यू नीड नॉट टू गो थ्रू दैट, तो also not need to purchase it all the right way. ठीक है? तो ऐसे नहीं है कि जैसे ही डाउनलोड कर दिया लिस्ट, अमेज़न पे गए और सारे बुक खरीद लिए. नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ. ठीक है? जैसे जैसे टाइम आएगा क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि नाउ दिस बुक इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम पेज नंबर दिस टू दिस. तो मैं बोल रहा हूँ स्ट्रक्चर कर दिया, वो भी डाला है टेलीग्राम चैनल पे, वो भी अपलोड कर देता हूँ वापस. आई विल गिव यू द बुक, और उस बुक में से कौन से नंबर के पेज से कौन से नंबर के पेज तक सिलेबस का कौन सा पॉइंट आपको पढ़ना है, ये मैं आपके करके ऑलरेडी रखा है. मैं आपको अपलोड करके टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ. यू नीड टू गो थ्रू दैट, बट इमीडिएटली आपको शुरू नहीं करना है कि मैं ले लेता हूँ. यू जस्ट नीड टू सी दैट दिस इज हाउ स्ट्रक्चर्ड वी हैव मेड इट. सो व्हेन यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग, आपका टाइम नहीं जाना चाहिए कि भाई कहाँ से पढ़ो. यू नो इट कहाँ से पढ़ना है, बट पढ़ाई करने में ज्यादा टाइम हम लोगों को इन्वेस्ट करेंगे. अंडरस्टूड? Now let's come to the third aspect. This is the most important aspect. If you try to look at the UPSC in totality, main examination जो 1750 मार्क का है, 1750 मार्क्स का, इसको अगर टोटलिटी में देखेंगे तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो 500 मार्क का ऑप्शनल तक का तो बात हम लोगों ने ऑलरेडी किया है यहाँ पे. बट नाउ लुक एट द other part of the syllabus where your GS papers are there and your essay paper are there. ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो सोशियोलॉजी हैज अ हाई लेवल ऑफ कॉन्ग्रुएंस विद दीज पार्ट ऑफ प्रिपरेशन. तो लेट्स स्टार्ट विद जीएस. मैंने आपको बताया जीएस में इंडियन सोसाइटी पार्ट है. इफ यू हैव अ ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉल्ड एज सोशियोलॉजी, उसका तो पढ़ाई करने का जरूरत ही नहीं है सेपरेटली, बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग सोशियोलॉजी. तो वहां पे तो आपको टोन डाउन करके लिखना पड़ेगा. ठीक है? तो जो आपके पास 15 पॉइंट है उसमें से 5-6 पॉइंट आपको आंसर में लिखने पड़ेंगे. उसमें भी थिंकर थ्योरीज का नाम निकाल के सिंप्लीफाइड करके आपको लिखना पड़ेगा. अरे आप समझ रहे हो ना? तो दैट विल बी द मोस्ट इजीएस्ट टास्क. तो उसका सेपरेटली पढ़ाई करने का जरूरत नहीं. सो आउट ऑफ 250 मार्क्स जीएस पेपर 1 का अराउंड 75 मार्क्स का वेटेज आपको इंडियन सोसाइटी को दिख रहा है कि नहीं? तो अगर वो 75 मार्क्स आपको इसके साथ अलाइन आपको होते हुए दिखेंगे, देन अगर आप जाओगे तो यू विल फाइंड आउट दैट एथिक्स पेपर इज देयर 250 मार्क्स. अगर एथिक्स को आप ठीक से समझोगे तो एथिक्स को आपको 3 डायमेंशन से समझना पड़ता है. One will be administrative ethics, one will be philosophical ethics, and third will be social dimension of ethics. Now उसको भी आप समझो क्यों. Now, ethics is a subject which will try to teach you what is the right thing to do, isn't it? ये सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये बताता है ना ethics. बट वो कौन-से कॉन्टेक्स्ट में बताता है आपको? सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में. इस सोसाइटी में
if you are looking at this particular dilemma or problem, what is the right thing to do? And when you look at it from the policy point of view, administrator point of view, that becomes an administrative ethics. If you are formulating a policy, for example, if you want to build a dam, तो आप डैम जहां पे बनाओगे तो हजारों लाखों लोगों का फायदा होगा उस पानी से, बट कुछ 100 लोग उसमें उनका घर चला जाएगा, जमीन चली जाएगी. तो व्हाट इज द राइट थिंग टू डू? दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज. But now you have to also understand it into the context of the society कि वो कौन सा सोसाइटी है जो यहाँ पे hamper हो रहा है. If it is a tribal community, it is not only about giving them an alternative land. It is that particular place that is the way of life there. It is that jungle that gives them a life. It is not only the land that is. So अगर उनको आप हटा के दूसरी जगह पे बैठा भी दोगे, आप उसको 2-2 एकड़ जमीन भी दोगे, उनको घर भी बना के दोगे, that will not be the way of life they were living in that jungle or other way. Then you have to understand कि इसको कैसे करना है. So करना ही नहीं करना वो बात नहीं है, कैसे करना है. This administrative angle of ethics can be only understood if you understand the social context. And sociology is a subject which give you different tools to understand the society. वही तो सब्जेक्ट है ना सोशियोलॉजी. सोसाइटी एक लॉजिकल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से आप समझते हो, यही सब्जेक्ट होता है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट मैटर. तो इफ यू अंडरस्टैंड और इफ यू लर्न सोशियोलॉजी, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एथिक्स. आप समझ रहे हो ना? तो एथिक्स समझना बहुत इजी हो जाएगा बिकॉज यू गॉट टू अंडरस्टैंड द सोशल एस्पेक्ट ऑफ एथिक्स. तो एथिक्स तो 250 मार्क्स है. अगर अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाता है तो प्रिपरेशन इजी हो जाता है, तो आंसर लिखना इजी हो जाता है बिकॉज क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली समझता है कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है. वेरी सिमिलर थिंग हैपेंस विद द जनरल स्टडीज पेपर. वो वाला ऐसे वाला ऐसे भी 250 मार्क्स के ना. अगर आप देखोगे तो जनरली देयर विल बी इश्यूज, social issues on the basis of which UPSC will be formulating essays. पुराने ऐसे पेपर निकाल के देखो. Nowadays they have used a smart way to put a philosophical quote to put that essay. लेकिन अगर उस philosophical quote को आप decode करोगे तो you'll find out that उसके पीछे कोई social issue छुपा होता है. दूसरा आपको एक बड़ी चीज बताता हूं, दिस इज फॉर होमवर्क. हाँ होमवर्क भी दिया जाएगा क्लास में, आपको करना पड़ेगा. मैं चेक नहीं करूंगा, बट अगर आप करोगे तो आपका पढ़ाई अच्छा हो. ठीक है, तो होमवर्क क्या देता है देखो आपके लिए. गो एंड ट्राई टू फाइंड आउट 2022 का ऐसे पेपर एंड 2021 का ऐसे पेपर मिलके 8 + 8 16 ऐसे टॉपिक्स होंगे. ठीक है, उसमें अगर आप डिटेल में जाओगे तो आपको उसमें से 5 ऐसे टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो सोशियोलॉजिस्ट के कोर्स है, जो सोशियोलॉजिस्ट हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं. यू विल फाइंड आउट द कोट ऑफ फ्रेडरिक एंगल हु वाज अ फ्रेंड ऑफ कार्ल मार्क्स. तो कार्ल मार्क्स पहला ही थिंकर है हमारे सिलेबस. तो कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे तो फ्रेडरिक एंगल उसके साथ आते ही आते हैं बिकॉज ही वाज आल्सो द थिंकर अलोंग विद हिम. यू विल फाइंड आउट द कोट ऑफ हेगल. हेगल की थ्योरी को क्रिटिसाइज करके कार्ल मार्क्स साहब ने थ्योरी बनाई. तो ऑब्वियसली हम लोग पहले हेगल का थ्योरी पढ़ते फिर कार्ल मार्क्स का थ्योरी पढ़ते. तो हेगल साहब के कोट है, 2 बार आए, देख लेना. देन यू विल फाइंड आउट द कोट्स ऑफ चार्ल्स एंड जीएच मीड. चार्ल्स फूले साहब उनका कोट आया है. तो ये लोग कौन है? तो देयर इज अ 6th थिंकर इन आवर थिंकर्स टॉपिक. 6 थिंकर्स है टोटल, उसमें 6th थिंकर है सिंबॉलिक इंटरैक्शनलिस्ट जीएस मीड. तो हम सिलेबस में उनको पढ़ते हैं, उनके साथ साथ कुले साहब का थ्योरी, कुले साहब का थ्योरी और जीएस साहब मीड साहब का थ्योरी पढ़ के हम लोग सिंबॉलिक इंटरैक्शनलिज्म का थ्योरी पढ़ते हैं. उन्हीं का कोट एज एन ऐसे टॉपिक दिया है. सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर जो थिंकर आप लोग पढ़ते हो उसका अगर कोट ऐसे में आ जाता है तो हम तो फोड़ के ही आ जाएंगे एग्जामिनेशन. तो ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा इफ यू फाइंड आउट दैट यू आर अपेयरिंग इन मेंस 2024 और 2025. 8 ऐसे के टॉपिक आपके सामने रखे हैं और उसमें से 2 या 3 ऐसे कोट्स है जो थिंकर आप लोगों ने ऑलरेडी सोशियोलॉजी की क्लास में पढ़े.
तो वहां पे आपको कंटेंट का प्रॉब्लम नहीं है। नाउ यू हैव टू जस्ट थिंक दैट कि कम वर्ड में इसको कैसे लिखें। अगर चाहे तो 2000 वर्ड में भी ऐसे लिख सकते हैं, इतना कंटेंट आपके पास होगा, आपको बस 1000 वर्ड में लिख के आना होगा। सो इसी का सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है कि आई डू नॉट हैव अ कंटेंट टू राइट, तो ये देखो सोशियोलॉजी आपको कंटेंट प्रोवाइड करेगा टू राइट अबाउट द एसे। अरे ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तो आप सिंपली देखो, अगर फॉर अ सेफर केस अगर हम लोग बोलते हैं कि देयर आर टू ऐसे टॉपिक्स 125 मार्क्स ईच, और अगर उसमें से एक टॉपिक हम लोग हिट कर पाते तो वहां पे 125 मार्क्स का हम लोगों को एडवांटेज मिला। जीएस पेपर 1 में 75 मार्क्स का इंडियन सोसाइटी का एडवांटेज मिला, टोटल मिला वो 200 हो गए। वैसे ही अगर आप सिमिलर देखोगे तो जीएस पेपर 2 में आपको गवर्नेंस इश्यूज में सोशल एस्पेक्ट के साथ बहुत सारी चीजें पूछी जाएगी, जैसे कि वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, फॉर एग्जांपल ट्राइबल ग्रुप, माइनॉरिटी ग्रुप, ये सारा सिलेबस है आपको सोशियोलॉजी में। सिक्योरिटी इश्यूज में आपको कुछ चीजें पूछी जाएगी जीएस पेपर 3 में। कुछ इकोनॉमिक्स में टॉपिक पढ़ा पूछे जाएंगे, फॉर एग्जांपल पॉवर्टी इज अ टॉपिक इन योर जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स, इसका तो सेपरेट टॉपिक हम लोग सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो ऐसा कम्युनिटिवली अगर आप देखोगे तो ऐसे और ऊपर आप कुछ मार्क्स जोड़ सकते हो, तो 200 मार्क्स का डायरेक्ट और 100 मार्क्स का इनडायरेक्ट, जीएस में 300 मार्क्स का आपको फायदा हो जाएगा इफ यू आर हैविंग सोशियोलॉजी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो सोशियोलॉजी के अलग 500 मार्क्स तो खुद के है ही, उसके साथ साथ अराउंड 300 मार्क्स ऑफ जीएस यू कैन कवर विद द नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजी। उसका सेपरेटली पढ़ाई करना पड़ेगा, बट आपको सोशियोलॉजी ऑप्शनल उसमें हेल्प करेगा। अरे समझ रहे हो ना? तो दिस इज हाउ द कॉन्ग्रुएंस ऑफ जीएस एंड एसे इज देयर विद द सोशियोलॉजी। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिसेंट परफॉर्मेंस ऑफ सोशियोलॉजी। अब ये आया मार्केट में चलता है कि नहीं वाला आर्गुमेंट, राइट? बिकॉज स्टूडेंट आते हैं मिलने को केबिन में और सिर्फ पहला सवाल ही पूछते, सर चलता है क्या आजकल मार्केट में सोशियोलॉजी? तो भाई चलता है, देखो कैसे चलता है दिखाते हैं। और उसके लिए भी क्या करेंगे, तो ये वाला आर्गुमेंट थोड़ा सा ऐड करते हैं उसमें, तो भाई इंटरव्यू में भी हेल्प हो जाता है सोशियोलॉजी। तो इंटरव्यू है ही क्या, आप सोचो ना, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, सही है, इसीलिए पीटी बोलते हैं उसको, पीटी, प्रीलिम टेस्ट नहीं, पर्सनैलिटी टेस्ट पीटी है। तो आपका पर्सनैलिटी जो है वो किसके हिसाब से चेक किया जाएगा? सोसाइटी के हिसाब से, सही है। सो यू नीड टू डेवलप योर पर्सनैलिटी बिफोर गोइंग टू द पर्सनैलिटी टेस्ट। और इसीलिए अगर आप देखोगे मेंस जब आपका हो जाता है और प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के बाद मेंस जब आपका होता है और इंटरव्यू, उसके बीच में आपको टाइम मिलता है। some people will get time of a month and a half, some people will get time of a 3 month। अरे भाई बंद हो रहा है कि नहीं? बंद होता है वो, साइलेंट नहीं, हैंग हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, कोई बात नहीं, मशीन ही है, हो जाता है। इंसान हैंग ना हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, ओके। तो अगर हम लोग देखेंगे तो आपको टाइम तो मिलेगा, मंथ एंड हाफ और 3 मंथ्स डिपेंडिंग ऑन कब आपका इंटरव्यू शेड्यूल है। तो उस टाइम में भी बहुत प्रिपरेशन करना पड़ता है, राइट? तो ऐसे नहीं है कि मैं तो टॉप हूं, मैं तो जाऊंगा इंटरव्यू में तो मुझे अच्छे मार्क्स, नहीं नहीं। यू आस्क द पीपल हु हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन और हैव गिवन एन इंटरव्यू, दे हैव टू डेडिकेटेडली प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। तो आपको लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव नीड टू डेवलप। तो ऐसे नहीं कि सब क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू यू आर गिविंग सिंपली अ प्लेन आंसर टू इट, तो नहीं, आप क्या आंसर देते हो, कैसे आंसर देते हो, ये सारा ऑब्जर्व किया जाता है वहां पे। देयर इज अ बिग पैनल ऑफ 5 मेंबर्स, एक्सपीरियंस्ड गाइस, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी तो इंपॉर्टेंट है। यू रीड द क्वेश्चंस और यू लिसन टू द टॉक्स ऑफ people who have attended the interview, most of the question will be on the social aspect of your life। आपके गांव की लाइफ के बारे में पूछेंगे, शहर के लाइफ के बारे में पूछेंगे। दे विल आस्क द डिस्ट्रिक्ट दैट यू बिलोंग टू, द स्टेट दैट यू बिलोंग टू, द कम्युनिटी दैट यू बिलोंग टू, द एजुकेशनल बैकग्राउंड दैट यू हैव। इफ यू आर फ्रॉम लेट्स से गवर्नमेंट स्कूल,
तो उसके बारे में आपको पूछेंगे। इफ यू आर फ्रॉम लेट्स से यू हैव डन योर ग्रेजुएशन फ्रॉम सर्टेन यूनिवर्सिटी, उसके अराउंड की चीजें आपको पूछेंगे। तो सोशली रिलेवेंट इश्यूज के बारे में पूछे। इफ सम सोशल इशू हैज हैपेंड इन योर डिस्ट्रिक्ट और योर तालुका, definitely there is going to be a question there. Now, which is the subject better make you understand the social reality around you? A sociology. And that's why you need to develop sociality before going to personality type. Understood? That's why the statement is. And not only till the interview, you have to understand that when you will become a government officer, this sociology knowledge will help you a lot. Because believe me, administrative procedure is there in a very elaborate manner. There will be code of conduct that you have to follow. Rules and regulations are already written that you have to follow in a very detailed manner. But how to use them will be your choice. And this how will be only determined by your social understanding of the reality around you. So looking at the person sitting in front of you, you have to understand uska social background. If that person is a villager, old age person, looking like a poor, so this person needs more help. तो आप उसको मत बोलो कि तुम कल सुबह 9 बजे आ जाओ। पता नहीं उसके पास बस के पैसे होंगे कि नहीं, पता नहीं उसके गांव में बस जाता है क्या, वो सुबह 9 बजे पहुंच सकते हैं। इफ ही इज देयर, यू ट्राई टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, इट इज इन द कोड ऑफ कंडक्ट लिखा गया है, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर का प्रॉब्लम नहीं है, हाउ यू यूज दैट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, और उसके लिए सोशियोलॉजी का बैकग्राउंड आपको हेल्प करेगा टू बिकम अ बेटर गवर्नमेंट ऑफिसर। तो बनोगे तो आप सही, बट सही बनोगे कि नहीं वो मैटर करेगा। जो आपका नॉलेज बेस है, थॉट प्रोसेस है, उस थॉट प्रोसेस को डेवलप करने के लिए सोशियोलॉजी आपको हेल्प करता है। अंडरस्टूड? नाउ कमिंग बैक टू द डिस्कशन में है कि मार्केट में चलता है कि दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग डिस्कशन एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर। वहां भाई चलता है मार्केट में, सिंपल लॉजिक। और मैं नहीं कह रहा हूं, यूपीएससी का रिजल्ट बोलता है। ये 2019 का यूपीएससी का रिजल्ट है, थोड़ी देर बाद 2020 का भी दिखाऊंगा, दोनों स्लाइड लेके आए। तो पहला देखो, मस्त ये दिखाया आपको डायग्राम में, क्या दिखाया देखो आपको यहाँ पे। 2019 में जो 500 रैंक होल्डर्स है, टॉप 500 रैंक होल्डर्स ऑफ 2019, उन्होंने कौन सा ऑप्शनल चूज किया था, उसका एक आपको यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा है। तो व्हाट डू यू फाइंड आउट देयर? यू विल फाइंड आउट दैट सबसे ज्यादा आपको दिखेगा पॉलिटिकल साइंस लोगों ने चूज किया है। उसके नीचे आपको दिखेगा वेरी क्लोज टू दैट, पॉलिटिकल साइंस इज अबाउट 16%, सोशियोलॉजी इज अबाउट 14% ऑफ द पीपल हु हैव बीन सिलेक्टेड ऑलरेडी। 500 जो टॉप रैंक्स है सोशल इसमें 2019 में सिलेक्टेड कैंडिडेट की, उसमें से सबसे ज्यादा आपको अगर दिखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस है, एंड देन इट कम्स द सोशियोलॉजी। ठीक है, तो सेकंड रैंक पे सोशियोलॉजी ऑप्शनल मार्केट में चल रहा है। राइट नाउ, क्या ऐसा तो नहीं है ना कि यार एक ही साल हुआ था, बाद में क्या हुआ है? तो देखते देखते तो हम लोग देखेंगे 2020 में क्या हुआ है। ठीक है, ये है 2020 ना। अब ये तो मैंने आपको डिटेल्ड वे नंबर के साथ ही दिखाया, परसेंटेज भी दिखाया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू सी व्हिच ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैड मोर देन 1000 स्टूडेंट अपीयरिंग फॉर दैट सब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो इसमें अगर जूम करके देखेंगे तो हम लोगों को दिखता है एंथ्रोपोलॉजी है, देन ज्योग्राफी है। यहाँ पे देखते हैं तो हम लोगों को दिखता है पॉलिटिकल साइंस है एंड सोशियोलॉजी। तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट आर अपीयरिंग फॉर, हम लोग जो इंटरव्यू जिन्होंने दिया है उनकी बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे मीन्स जिन्होंने दिया है उनकी बात चल रही है, तो हम लोगों को दिखता है कि सबसे ज्यादा अराउंड 1800 प्लस स्टूडेंट्स आर इन पॉलिटिकल साइंस। उसमें से सिलेक्टेड कैंडिडेट कितने हैं? तो भाई मीन्स दिया, लेकिन फाइनल लिस्ट में कितने लोग आए, उनका एक परसेंटेज आपको यहाँ पे दिखाया है, अराउंड 8.3% दिख रहा है ना। वैसे अगर आप देखोगे तो जो सब्जेक्ट ज्यादा 1000 से ज्यादा लोगों ने लिया है, उसमें अगर आप परसेंटेज देखोगे सिलेक्शन का,
you will find out that sociology has a very high percentage. तो अराउंड 1200-1300 लोगों ने ऑप्शनल लिया है, उसमें से 9.2% people have already cleared the examination with optional sociology. There are other subjects also. Geography में ऐसे भी होते हैं, around 7%, 8% लोग हो रहे हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो. So you can go through this particular detail. Even if you want to go through the other detail, I have already uploaded 2022 का analysis. 2022 का analysis on the Telegram channel. Around 130 candidates का analysis है. And there also you will find out the same trend. Political science, the highest number of people selected, followed by sociology. Right? Now you have to find out what is the subject that interests you most. क्योंकि अगर आप देखोगे तो whatever are the subjects available at the Unique Academy, बाकी के सारे factors आपको same रहेंगे. You will have the resource material for you. You will have the personal guidance available to you. Some subject will have more and less congruence with GS or other thing. Market में कौन सा चल रहा है ये तो आप डेटा देख के खुद एनालिसिस कर सकते हो. Now again the discussion will go back to what is the interest that you have, where it lies, which subject is more closer to that interest, and then I will suggest you that you shall choose that particular optional as a subject. I personally find that sociology market में चल भी रहा है क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट भी होता है और जीएस में कॉन्ग्रुएंस भी है, along with certain other subjects that we have mentioned now. Understood? So that is how I will pitch for this subject, and I will say concluding remark में, in this discussion we have talked about what are the different optional subjects available to you, how you shall choose an optional subject, what is the demand of UPSC when they are talking about an optional subject in comparison with general studies paper. And then we are going to start with our batch on July 17th. And पहले lecture से ही हमारा काम शुरू हो जाएगा. So those who are interested in optional subject sociology, I will give you certain things to do before attending the first lecture on the 17th of July. You all shall read through the 4 NCERT books that are there. Indian Society जो लोग पढ़ रहे हैं उन लोगों ने उसमें से 2 NCERT पढ़ी होनी एक्सपेक्टेड है. एक है इंडियन सोसाइटी एंड सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट वाला NCERT. और 2 NCERTs है, उसमें एक है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी नाम का एक NCERT है. There is also another NCERT of 11th standard of sociology. तो do read through these NCERTs. लेकिन इसके नोट्स वगैरह बनाने का जरूरत नहीं है, not necessary right now. We will read these NCERTs like a novel. कादंबरी कशी वाचतो आपण? We will just read them like a story books. कि क्या दिया है भाई उसमें, तो एक बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा. और फिर when we will meet on the 17th of July for the sociology, from the first lecture only, I am expecting you to have your full attention and concentration. Because I am going to give my 100% to you while teaching sociology. I will be expecting 100% from your side. तो दोनों का 100 मिला के 200 बन जाएगा. So that will make this procedure faster and easier. तो सब लोग 100% देते हैं भाई, बट मेरा 100 आपका 100 मिलाते हैं, उसको 200 बनाते हैं, and then let's try to complete the procedure as early as possible in a better manner, right? So that I will be waiting for you all people on the 17th of July for our first lecture. Okay, that is all from my side, but we are open for question and answer session. Those who are attending it online, please do ask it on the in the chat box. Those who are sitting here can raise their hand and ask the question. सोशियोलॉजी, करंट अफेयर्स, तो उसमें अगर आप देखोगे तो वी कैन यूज करंट अफेयर्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोशियोलॉजी.